Hello friends, let's continue with the concept of chemical equilibrium. Equilibrium को define करें, मैं आपको already समझा चुकी हूँ कि equilibrium है क्या. It is that time period, it is that stage during a reaction, basically a reversible reaction, in which the rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction. तो हम इसको define भी इसी तरीके से कर सकते हैं. It's a stage in a reversible reaction at which the concentration of reactants and products do not change with time. So if we define equilibrium, then the concentration of, in chemistry the concentration is shown with square bracket. इसके अंदर जो भी आप लिखेंगे हम उसकी concentration की बात करेंगे. तो for example इसके अंदर आपने अगर reactant लिख दिया तो हम reactant की concentration की बात करेंगे. And the concentration of product, they become what? They become constant. Please pay attention. I'm not saying they'll become same, but they'll become constant. Same हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, वो अलग बात है. But they will not change with time. Why? Because the rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction. Or we can say the state in a reversible reaction in which the measurable properties, जितनी भी measurable properties होती हैं like pressure, volume, density, and many more, such measurable properties do not change with time under the given set of conditions. Then this way we can define chemical equilibrium. Now, what are the characteristics of chemical equilibrium? What are the basic features of chemical equilibrium? So, we'll just go through the characteristics of chemical equilibrium. First characteristic is very important. It is achieved only and only in what? Yes, reversible reactions. Because for this, we require both the reactants as well as products to be present in the same system, in the same container. That is why it has to be in a reversible reaction. Secondly, what it requires, very importantly, it is achieved only in a closed container. The container has to be closed. Otherwise what? Maybe we are performing a reaction in which the product is gaseous. So if the container is open, or like all gases, it will have a tendency to escape in the atmosphere. And if the product escapes out of the system, it goes out of the container, then it won't be possible for us to revert the reaction. That is why, or maybe it may happen that if the container is open, then some other substances, some other gases which are present in the atmosphere, they can come and react with the substances present in the कंटेनर. तो वो कहते हैं ना, अंदर से कोई बाहर ना आ सके, बाहर से कोई अंदर ना जा सके, यानी क्लोज कंटेनर. बोलो कभी ऐसा हो तो क्या हो? बोलो कभी ऐसा हो तो रिवर्सिबल रिएक्शन हो, और उसमें क्या अटेन हो जाएगा? इक्विलिब्रियम आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, राइट. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक that we can say is the basic characteristic. At a given temperature, certain properties like concentration, density, pressure, color, etc. will become constant. So we can say the measurable properties, जितनी भी properties हम observe कर सकते हैं, measure कर सकते हैं, the measurable properties will become constant. They'll get constant. Yes, they'll come to a standstill. They'll become constant. Right. Then the next characteristic that can be stated is the equilibrium can be achieved from any side. It can be achieved from any side. Any side का मतलब किसी भी साइड से हम रिएक्शन को माने. फॉर एग्जाम्पल अगर हम A कन्वर्टिंग इनटू B, अगर हम ये रिएक्शन कंसिडर कर रहे हैं तो हम A को रिएक्टेंट मान के चलें और A का कन्वर्जन B में फॉरवर्ड रिएक्शन माने, या फिर हम B को रिएक्टेंट मानकर चलें और B का कन्वर्जन A में फॉरवर्ड रिएक्शन माने और दूसरे को रिवर्स, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इक्विलिब्रियम जिस पॉइंट पर अटेन होना होगा वो उसी पॉइंट पर अटेन हो जाएगा. राइट. तो किसी भी साइड से आप स्टार्ट करें, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी साइड and the equilibrium will be attained. The next character that we can say that's very important again, chemical equilibrium की मैं बात कर रही हूँ. chemical equilibrium हमेशा क्या होता है? It is always dynamic in nature. Chemical equilibrium is always dynamic in nature. Now what do you mean by dynamic? That's very important. For example, see there are two terms. One is static, the other one is dynamic. Static और dynamic का डिफरेंस हम बहुत इजीली समझ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हम सब ने सीसॉ देखा है, ठीक है. सीसॉ में अगर दोनों साइड वेट बैलेंस हो जाए, यस, तो इट कम्स टू अ स्टैंड स्टिल. वो रुक जाता है. हमें वो दिखाई देता है कि सीसॉ रुक चुका है, और वो वाकई में रुक चुका होता है बिकॉज ऑफ द बैलेंस क्रिएटेड, बिकॉज ऑफ द इक्विलिब्रियम क्रिएटेड, राइट. द अदर एग्जाम्पल दैट वी कैन टेक मे बी कि हम एक टैंक को फिल कर रहे हैं.
वी नीड टू फिल अ टैंक विद वाटर, राइट? और उसको हमने एक टैंक लिया हुआ है और उसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर है, मे बी दिस इज द लेवल ऑफ वाटर. इसमें हमने एक इनलेट सोर्स ऑफ वाटर दे रखा है, एक आउटलेट भी है. यस, एंड वी कैन कंट्रोल द रेट ऑफ फ्लो, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ वाटर. यस, तो सपोज हमने इनफ्लो जो है वाटर की रेट, जिस जिस रेट से वाटर अंदर आ रहा है वो, और जिस रेट से वाटर बाहर जा रहा है, उन दोनों रेट्स को हमने इक्वल कर दिया. The rate with which the water is coming inside the container, inside the tank, is equal to the rate at which it is leaving the tank. Then what will happen? We'll find there is no change in the level of water. Yes, हमें अगर हम दूर से देखेंगे, सिर्फ टैंक को देखेंगे, तो हमें लगेगा वाटर का लेवल चेंज नहीं हो रहा. इसका मतलब कोई भी उसमें प्रोसेस नहीं हो रहा. देखने पर ऐसा लगेगा, बट एक्चुअली में क्या हो रहा होगा? एक्चुअली में ये हो रहा होगा कि जितना वाटर, जिस रेट से वाटर अंदर आ रहा होगा, उसी रेट से वाटर बाहर भी जा रहा होगा. दैट इज वाई जो लेवल होगा वो कांस्टेंट मेंटेन रहेगा. दिस इज व्हाट डायनामिक इक्विलिब्रियम, व्हेन द थिंग्स आर डिफरेंट एज देयर अपीयर टू. जो हमें दिखाई दे रहा है, हमें ऐसा लगता है कि प्रोसेस रुक गया, लेकिन वो एक्चुअली रुका हुआ नहीं होता है, पर वो एक स्पीड, एक कांस्टेंट, एक सेम स्पीड से, दोनों जो अपोजिंग फोर्सेस हैं, दोनों जो अपोजिंग प्रोसेसेस हैं, वो सेम स्पीड से चल रहे होते हैं. इसलिए उसमें ओवरऑल कोई भी मेजरेबल या ऑब्जर्वेबल चेंज नहीं आता. यस, तो एक एग्जाम्पल सीसॉ का दिया, उसमें जो चीज दिखाई दे रही है वही एक्चुअली है. वो रुका हुआ दिखाई दे रहा है, वो रुक गया है वाकई में. और डायनामिक में क्या हो रहा है कि रुका हुआ दिखाई तो दे रहा है, बट एक्चुअली में रुका हुआ नहीं है. तो जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, जिसमें हम रिएक्शन की बात करते हैं, उसमें क्या हो रहा होता है? रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स आर कन्वर्टिंग इनटू रिएक्टेंट्स. एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम द रेट्स ऑफ बोथ दीज रिएक्शंस बिकम्स इक्वल. तो जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, उतना ही प्रोडक्ट वापस उसी रेट से, मतलब रिएक्टेंट में प्रोडक्ट दोबारा कन्वर्ट हो जाता है. तो अगर हम बाहर बाहर से हमें जो दिखाई दे रहा है कोई मेजरेबल प्रॉपर्टी, वो देखेंगे तो वो तो सब कांस्टेंट हो गई. कलर कांस्टेंट हो गया, प्रेशर कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, डेंसिटी कांस्टेंट हो गई. तो ऐसा लगता है कि रिएक्शन नहीं हो रहा, रिएक्शन रुक चुका है, बट एक्चुअली रिएक्शन रुका हुआ नहीं होता है. दिस इज व्हाट डायनामिक मीन्स, विच इज कंटिन्यूइंग एट अ कांस्टेंट रेट, राइट? The next characteristic, the next feature that we can quote is something about a catalyst. But before I speak about it, what is a catalyst? A catalyst is a substance which changes the rate of reaction without undergoing any change in itself. वो बिना अपने आप को change किए, बिना अपने आप को change किए, for example, जितना आपने मास डाला है कैटलिस्ट का, उतना ही मास आपको रिकवर होगा. जिस स्टेट में, स्टेट इन द सेंस कि आपने एलिमेंट के फॉर्म में डाला है तो एलिमेंट ही मिलेगा, कंपाउंड के फॉर्म में डाला है, ऑक्साइड डाला है तो ऑक्साइड ही मिलेगा. हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट ऐसा कुछ नहीं मिल सकता. तो हम बोलते हैं कि उसमें कोई चेंज नहीं आया, पर वो क्या कर सकता है? वो रेट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, राइट? सो इफ यू टॉक अबाउट कैटलिस्ट, और हम कैटलाइज रिएक्शन को कंसिडर करें, तो a catalyst does not change the state of equilibrium. जिस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम आना है वो उसी पॉइंट पर आएगा, चाहे आप कैटलिस्ट की एब्सेंस में रिएक्शन को करवाओ, चाहे आप कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन को करवाओ. द ओनली डिफरेंस विल बी अ कैटलिस्ट विल हेल्प और इट विल लीड टू व्हाट? अर्ली अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम. इट विल लीड टू अर्ली अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम. तो अगर इक्विलिब्रियम पहले 10 मिनट में आना था, अब कैटलिस्ट के यूज की वजह से क्या होगा? मे बी वो 6 मिनट्स और 5 मिनट्स, दैट विल डिपेंड अपॉन द रिएक्शन एंड डिपेंड अपॉन द कैटलिस्ट, वो जल्दी आ जाएगा. लेकिन अगर इक्विलिब्रियम तब आना है जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेट्स से 2 मोल पर लीटर है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर है, व्हाटएवर, ये सिर्फ एक एग्जांपल है. तो इक्विलिब्रियम आएगा तो उसी पॉइंट पर जब कंसंट्रेशन ये होंगी, राइट? जब टेम्परेचर इतना होगा, जब डेंसिटी इतनी होगी. तो जिस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम आना है वो उसी पॉइंट पर आएगा. सिर्फ कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या होगा? अर्ली अटेनमेंट होगा, टाइम रिड्यूस हो जाएगा जिस टाइम में इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा होगा. एंड दिस इज व्हाई, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैटलिस्ट आर पॉजिटिव कैटलिस्ट. अगर हम मेजोरिटी कैटलिस्ट की बात करें तो पॉजिटिव कैटलिस्ट है. तो वो क्या करते हैं? वो रेट फॉरवर्ड रिएक्शन को भी बढ़ाते हैं और वो बैकवर्ड रिएक्शन की रेट को भी बढ़ाएंगे. सो दैट विल हेल्प इन अर्ली अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम. Right? I hope the characteristics are clear now. Now let's come to a very important part of equilibrium, that is law of chemical equilibrium. We'll now study about law of chemical equilibrium.
And this is what? This is actually an application of law of mass action. This law of chemical equilibrium is an application of law of mass action. Law of mass action was basically the concept was proposed by Gullberg and Vage, and this is related to the rate of a reaction. Yes, according to this law of mass action, the rate of a reaction is directly proportional to the concentration of reactants, the active concentrations of reactants. Yes, तो अगर हम किसी भी रिएक्शन की बात करें, हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि A is combining with B, it is reacting with B and हमें प्रोडक्ट मिल रहा है C प्लस D. अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन इसमें अप्लाई करें, तो अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रही हूं, देन लॉ ऑफ मास एक्शन सेज कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, लेट इट बी represented by R subscript F. तो rate of forward reaction is directly proportional. Forward reaction के लिए reactants A और B है, so that is directly proportional to the concentration of A and concentration of B. Right? ऐसे ही because there are two reactions in a reversible process, तो हम बोल सकते हैं कि यही बात हम reverse reaction के लिए भी लिख सकते हैं कि rate of backward reaction, right? Let it be RB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अब इस केस में प्रोडक्ट्स हो जाएंगे सी और डी, तो सॉरी रिएक्टेंट हो जाएंगे सी और डी, तो ये हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड द कंसंट्रेशन ऑफ डी. राइट, ये लॉ ऑफ मास एक्शन है. ठीक है, अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हम हटाते हैं तो हम इसमें कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं विच इज नोन एज रेट कांस्टेंट. तो यहां पर दो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होंगे, एक फॉरवर्ड reaction के लिए, एक बैकवर्ड रिएक्शन के लिए. तो वी कैन राइट RF is equal to KF, where KF is the rate constant of forward reaction A into B. Similarly, RB के लिए हम लिख सकते हैं RB is equal to KB, where KB is the rate constant of backward reaction, concentration of C and concentration of D. मैं ये इक्वेशन बैलेंस्ड मान के चल रही हूँ, where all the stoichiometric coefficients are 1. तो मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ. Now, if I apply the concept of equilibrium in it, तो equilibrium में कहता है कि जब equilibrium attain होगा तो क्या होगा, दोनों रेट्स बराबर हो जाएंगे. तो at equilibrium what will happen, RF will become equal to RB. Substituting, अगर expression substitute कर दें तो KF into A, concentration of B will become equal to KB, concentration of C and concentration of D. Right? Now I can find out the expression of KF upon KB. तो मैं लिख देती हूँ KF upon KB. क्या हो जाएगा, CD upon AB. I can write it like this. Now KF is a constant, KB is also a constant. दो कांस्टेंट्स का रेशियो डेफिनेटली क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा. दैट इज रेफर्ड टू एज KC, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मैंने K से डिनोट किया है, सबस्क्रिप्ट C इसीलिए लगाया है क्योंकि यहां पर मैं कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन मान रही हूं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की. जो भी स्पीशीज है इन्वॉल्व उनकी आई एम क्या कंसिडरिंग, आई एम कंसिडरिंग द मोलर कंसंट्रेशन. तो जस्ट टू डिनोट कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वो एक्सप्रेशन है जिसमें हम मोलर कंसंट्रेशन कंसिडर कर रहे हैं. तो आई पुट अ सबस्क्रिप्ट C. तो KC विल बी व्हाट, इट विल बी द concentration of CD upon the concentration of AB. This becomes the expression for equilibrium constant. Now this equilibrium constant, it has a definite value for every reaction at a given temperature. तो एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए इसकी वैल्यू डेफिनेट है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे. सपोज यहां तो मैंने स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सारे 1 माने थे. लेट्स से कि मैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स कुछ और मान लेती हूँ, बिकॉज जरूरी नहीं है हर बार इक्वेशन इसी तरीके से बैलेंस्ड हो. तो फॉर एग्जांपल लेट्स से M1A प्लस M2B इट इज प्रोड्यूसिंग N1C प्लस N2D. राइट, अगर मुझे इसके लिए KC का एक्सप्रेशन लिखना है तो इट विल बी C रेज टू पावर N1 इंटू D रेज टू पावर N2 अपॉन A raised to power M1 and B raised to power M2. So what I have done, I have raised each species with what, to the power of its stoichiometric coefficient.
जो भी स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है वो किस फॉर्म में आ जाएगा, वो पावर के फॉर्म में, उस रिस्पेक्टिव स्पीशीज के लिए वो पावर के फॉर्म में आ जाएगा, राइट। नाउ ये जो केसी है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर है क्या, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट्स, इट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टू रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और वी कैन से, अगर मैं इसको बहुत इस फॉर्मूले से डिफाइन करूं तो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स to the product of molar concentration of reactants, with each concentration term raised to power equal to the stoichiometric coefficient in the balanced chemical equation. I know definition बहुत लंबी है बट उसको ध्यान से आप सुनो तो ये पूरा फॉर्मूला ही मैंने डिस्क्राइब किया है. What I've said, equilibrium constant may be defined as the ratio. तो रेशियो तो है ही, राइट? मैं इसमें रेशियो ही ले रही हूं दो चीजों का, ये रेशियो ही है. किसका रेशियो? द प्रोडक्ट, सी प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, यस, एंड व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स to the product of molar concentration of reactants when each concentration term has been raised to what? To power equal to its stoichiometric coefficient as in the balanced chemical equation. तो जिस तरीके से हमने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया है उसमें जो भी कोफिशिएंट्स हैं हमने वो कहां डाल दिए? हमने वो उस स्पीशीज की पावर में डाल दिए. दैट बिकम्स व्हाट? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. यस, बट एक बात यहां पर ध्यान रखिएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर इस इक्वेशन में मैं बोलूं कि C जो है वो सॉलिड है, राइट, या मुझे पता है कि C सॉलिड है, या CO2 आ गया किसी सॉरी कोई लिक्विड आ गया, या तो कोई सॉलिड आ जाए या कोई लिक्विड आ जाए, तो कंसंट्रेशंस ऑफ प्योर सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स आर ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी कांस्टेंट. इनिशियल कंसंट्रेशन आपने क्या ली है उस पर किसी की वैल्यू डिपेंड नहीं करती. तो लेट्स सी some factors on which value of equilibrium constant does not depend, right? The first factor is the initial concentration of reactants. The second factor is presence of a catalyst. ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, presence of catalyst, इससे इक्विलिब्रियम पर फर्क नहीं पड़ेगा. The third factor is presence of inert material. Inert material की presence भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट नहीं करेगी क्योंकि वो इनर्ट है. हमने बता दिया ऐसा कोई सब्सटेंस है जो रिएक्शन में वो रिएक्ट नहीं कर पा रहा, तो रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो उसको हम रेट के एक्सप्रेशन में, लॉ ऑफ मास एक्शन में नहीं लिखेंगे और इसलिए वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी अफेक्ट नहीं कर रहा होगा. द फोर्थ फैक्टर कैन बी द डायरेक्शन फ्रॉम विच द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड. डायरेक्शन फ्रॉम विच इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड. ये भी मैं आपको समझा चुकी हूं कि आप किसी को भी रिएक्टेंट और किसी को भी प्रोडक्ट मानकर चल सकते हो, उससे इक्विलिब्रियम पर इफेक्ट नहीं होगा, राइट? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्योर द कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड, अगर कोई सॉलिड है उसकी कंसंट्रेशन, अगर कोई लिक्विड है प्योर लिक्विड तो उसकी कंसंट्रेशन, इनकी जो कंसंट्रेशंस होती है व्हाट डू वी कंसिडर? वी कंसिडर देम टू बी कांस्टेंट्स. यस, और इसीलिए हम उसको, भाई अगर वो कांस्टेंट है तो वो रेट को अफेक्ट नहीं कर रही, रेट को अफेक्ट नहीं कर रही तो लॉ ऑफ मास एक्शन में नहीं आएगी, लॉ ऑफ मास एक्शन में नहीं आएगी तो इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन में भी नहीं आएगी, राइट? नाउ देयर आर सम फैक्टर्स ऑन विच द वैल्यू ऑफ Kc डज नॉट डिपेंड. कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर Kc की वैल्यू डिपेंड नहीं करती. फॉर एग्जाम्पल, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स.